ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੀਆਂ 991 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 1। ਇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 25 ਦੇ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, 7 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਪਲੱਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ, ਬਚੇ ਹੋਏ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਐਂਗਕੋਰਵੈਟ। ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਐਂਗਕੋਰਵਟ ਟੈਂਪਲ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਐਂਗਕੋਰਵੈਟ ਟੈਂਪਲ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੰਬੋਡੀਆ। 2 ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਈਸੋਨ ਟੈਂਪਲ। ਮਾਈਸੋਨ ਜੋ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੈ ਪੰਜ ਤੀਰਥ ਟੈਂਪਲ। ਪੰਜ ਤੀਰਥ ਟੈਂਪਲ ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇਸ਼। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਤੁੰਗਾਭਦਰਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਲੋਕੇਟਡ। ਜੋ ਤੁੰਗਾਭਦਰਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁੰਗਾਭਦਰਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਤੁੰਗਾਭਦਰਾ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕਾ। Who amongst the following is the author of the book My Journey from Marxism Leninism to Nehruvian Socialism? ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਥਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, My Journey from Marxism Leninism to Nehruvian Socialism। ਇਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਜੋ ਆਥਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਮਲ ਜਲਾਨ, CH ਹਨੂਮੰਥਾ ਰਾਓ, ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਸੂ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਆਥਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ CH ਹਨੂਮੰਥਾ ਰਾਓ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ CH ਹਨੂਮੰਥਾ ਰਾਓ। Which one amongst the following music personalities has not been awarded the ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ? ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੋਟ ਬੀਨ ਅਵਾਰਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਹੈ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 3 ਜਣੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਹ 3 ਜਣੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ, ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ, ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ CV ਰਮਨ, ਡਾਕਟਰ CV ਰਮਨ। ਇਹ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ।
फर्स्ट वूमेन कौन सी? इंदिरा गांधी। कदों मिलिया सी? 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ठीक है, ऑप्शन ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, MS ਸੁਬਲਕਸ਼ਮੀ, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी या फिर उस्ताद बिस्मिल्ला खान। यह जो अवार्ड है यह हाले तक उस्ताद बिस्मिल्ला खान नूं नहीं दिता गया। इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, उस्ताद बिस्मिल्ला खान। द लीजेंडरी एशियज सीरीज़ ऑफ क्रिकेट इज़ प्लेड बिटवीन विच टू कंट्रीज़। एक सीरीज़ है क्रिकेट की एशियज सीरीज़। यह जो सीरीज़ है यह किहड़े-किहड़े दो देशों के विचकार खेली जाती है? इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो एशियन सीरीज़ ऑफ क्रिकेट है यह खेडी जाती है इंग्लैंड एंड आस्ट्रेलिया के विचकार। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, इंग्लैंड एंड आस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन। उस तो बाद 6वां नंबर क्वेश्चन देखो, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड कल्स बंदूरी वाटर प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। It aims to divert water from Mahadai Mandovi river to which of the following river। जो केंद्र सरकार है इस दे द्वारा अप्रूव किया गया जो कल्स बंदूरी वाटर प्रोजेक्ट है कर्नाटका दे विच, ठीक है, यह अप्रूव किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इस दे विच आपां नूं पूछा गया है जो मंडोवी या फिर महादई रिवर का जिहड़ा पानी है वह डाइवर्ट किया जाऊगा, किहड़ी रिवर दे विच किया जाऊगा। ठीक है, इस दे विच आपां नूं यह पूछा गया है इट एम्स टू डाइवर्ट फ्रॉम मंडोवी रिवर टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। यानी यह जो पानी है किस रिवर दे विच जिहड़ा है डाइवर्ट किया जाऊगा, गोदावरी रिवर दे विच, कृष्णा, मालप्रभा या फिर काबिनी। यह जो रिवर है इसका नाम है मालप्रभा रिवर। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, मालप्रभा रिवर। इस दे विच आपां ने यह भी याद रखना है जो मालप्रभा रिवर है यह भी पूछा जा सकता है आपां नूं यह किस रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर है। यह है ट्रिब्यूटरी कृष्णा रिवर की, कृष्णा रिवर। जो मालप्रभा रिवर है यह ट्रिब्यूटरी है किसकी? कृष्णा रिवर की। ठीक है, एक बार आप चेक कर लिए कि रिकॉर्डिंग अपनी सही चल रही है, सही चल रही है। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, मालप्रभा रिवर। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, 7वां नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 6th सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द BPRD इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यानी जो केंद्रीय मंत्री ने अमित शाह, ठीक है, इन्हों के द्वारा 6वां सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। ठीक है, किहड़ी स्टेट के विच रखा है? कर्नाटका दे विच, केरला दे विच, तमिलनाडु दे विच या फिर गुजरात दे विच। इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है वह रखा गया है कर्नाटका दे विच। इसका आंसर बन जाएगा अपना कर्नाटका स्टेट। अगर पूछा जाए कर्नाटका दे विच कित्थे, कर्नाटका दे विच एक जगह है देवनहल्ली जो कि बेंगलुरु दे विच आती है, उत्थे इसका नींह पत्थर रखा गया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, कर्नाटका। और अगर पूछा जाए पहला जिहड़ा है यह कित्थे बनाया गया सी ते कदों बनाया गया सी, जो सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सब तो पहला 1958 के विच यह बनाया गया सी कोलकाता दे विच, कोलकाता दे विच। ठीक है, उस तो बाद आपां ने भी याद रखना है टोटल 6 ने, 6 के 6 नाम आपां नूं पता होने चाहिए ने। 2 तो आपां नूं पता लग गया कि कर्नाटका दे विच एक कोलकाता दे विच है। ठीक है, जो पहला बनिया सी कोलकाता दे विच सीगा। ठीक है, इस तो बाद हैदराबाद दे विच बन गया, चंडीगढ़ दे विच बन गया, जयपुर दे विच बन गया। ठीक है, जयपुर दे विच ते फिर बन गया गाजियाबाद दे विच। ठीक है, यह 6 सिटीज़ ने। कर्नाटका दे विच भी आपां याद रख सकते हैं बेंगलुरु दे विच। ठीक है, बेंगलुरु दे विच। इसका आंसर बनेगा अपना कर्नाटका, ए ऑप्शन। इस दे विच जो BPRD की गल की गई है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट, यह पूछा जाए अगर किहड़ी मिनिस्ट्री अंडर आता है, ये आता है जो गृह मंत्रालय इंडिया का, ठीक है, होम मिनिस्ट्री है उस अधीन आता है BPRD। ठीक है, इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन, कर्नाटका। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द प्लैनरी ऑफ द वासीनार अरेंजमेंट। यानी हाल ही विच हेठ लिखे देशों विचों किसने वासीनार व्यवस्था की प्लैनरी की प्रधानगी संभाली है? यह किहड़े देश ने संभाली है? इंडिया, आयरलैंड, UK या फिर ग्रीस। यह संभाली है इंडिया ने। कदों तो? 1 जनवरी 2023 तो। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन, इंडिया, भारत।
ठीक है। इस दे विच आपां ने ये भी याद रखना है जो इंडिया है ये कदों मैंबर बनिया सी। इंडिया जो है इंडिया मैंबर बनिया सी 2017 दे विच 2017 दे विच। ते किन्नवां मैंबर बनिया सी 42वां 42वां मैंबर बनिया सी इंडिया इस वासीनार अरेंजमेंट का। तो जो वासीनार अरेंजमेंट है ये कदों बनी सी, ये जुलाई दे विच बनी सी 1996 दे विच 1996 दे विच। ते इसदा हैडकुआटर कित्थे है वियना दे विच, वियना, ठीक है। आस्ट्रेलिया दे विच वियना दे विच लोकेटेड है इसदा वासीनार अरेंजमेंट का हैडकुआटर। यह 8 क्वेश्चन सी जिहड़े जीके दे सी जिन्हां नूं आपां ने डिटेल दे विच कवर कर लिया। उस तो बाद रीजनिंग ते मैथ दे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखो, एज अ सन बी इज़ मैरिड विद सी, यानी ए दा पुत्र कौन है बी है, तो इसका विआह किहदे नाल होया सी दे नाल, ठीक है। ए दा पुत्र कौन है बी है, तो इसका विआह किहदे नाल होया है, इसका विआह होया है सी दे नाल, ठीक है। तो हुज अ सिस्टर ऑफ डी, यानी इस दे विच क्या गया है आपां नूं हुज अ सिस्टर ऑफ डी, यानी जो सी है इसकी सिस्टर कौन है डी है, ठीक है। इसकी सिस्टर है डी, इज़ मैरिड टू ई, जो इसकी सिस्टर डी है ये किहदे नाल मैरिड है ई दे नाल। तो आपां नूं पता लग गया ये कौन हो जाएगा, इसका हसबैंड हो जाएगा ई, ठीक है। आपां नूं की पूछा गया है द ब्रदर ऑफ बी, जो ई है इस दे विच, ठीक है। यह ब्रदर किसदा है बी दा, यानी यह दोनों की ने दोनों भाई ने एक दूजे दे, ठीक है। यह ब्रदर ने दोनों दे दोनों बी ते ई। आपां नूं की पूछा गया इस क्वेश्चन दे विच हाउ इज़ अ डी रिलेटेड टू ए, जो डी है इसका ए दे नाल की रिलेशन है, ठीक है। आपां नूं साफ पता लग रहा है, ठीक है। जो ए है यह मदर भी हो सकती है तो यह फादर भी हो सकता है इस ई का, ठीक है। और ई दी वाइफ है कौन डी है, तो आपां नूं ये पता लग गया ये इसकी की लगेगी, इसकी चाहे ये मदर है चाहे ये फादर है, यह इसकी की लगेगी डॉटर इन लॉ, ठीक है। इस करके आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन बन जाएगा डॉटर इन लॉ। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन, अ मोंकी इज़ ट्राइंग टू क्लाइंब अ स्लिपरी पॉल ऑफ 11 मीटर हाइट, यानी एक स्लिपरी पॉल है जिसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है 11 मीटर की है, ठीक है। एक अटैम्प्ट दे विच यह जो मोंकी है 3 मीटर चढ़ जाता है इस स्लिपरी पॉल के उपर, तो 1 मीटर नीचे आ जाता है, ठीक है। मान लो अपने को एक इस तरह का स्लिपरी पॉल है, इस तरह का, ठीक है। इस तरह का स्लिपरी पॉल है, इस स्लिपरी पॉल की जी लंबाई है वो कितनी है 11 मीटर की है, ठीक है 11 मीटर की। तो आपां नूं क्या गया इस दे विच एक अटैम्प्ट दे विच जिहड़ा मोंकी है इस तरफ चढ़ता है तो 3 मीटर चढ़ता है, तो नीचे कितना आ जाता है 1 मीटर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आपां नूं की पूछा गया है किन्ने अटैम्प्ट दे विच यह जो मोंकी है इस पोल के उपर क्लाइंब कर जाएगा, यानी इस पोल के उपर चढ़ जाएगा, यह आपां नूं क्वेश्चन दे विच पूछा गया है। अगर आप देखिए सब तो पहले अटैम्प्ट के विच की होया होगा 3 मीटर ये उपर चढ़िया तो 1 मीटर नीचे आ गया, मतलब की होया इस दे विच 2 मीटर ही ये उपर चढ़ पाया इस स्लिपरी पॉल दे विच फस्ट अटैम्प्ट दे विच, ठीक है। उस तो बाद आपां नूं ये भी पता इस दे विच इसकी लंबाई कितनी है 11 मीटर की है, यानी 11 मीटर इसनूं इस स्लिपरी पॉल के उपर चढ़ना पऊगा तां ही उस केस दे विच ये इस पोल नूं क्लाइंब कर पाएगा, ठीक है। तो आपां की करांगे इस दे विच अगर आप देखिए जो लास्ट वाला है, यानी आप ये कह सकते हैं लास्ट तो यह कि चढ़ूगा 3 मीटर चढ़ूगा, तो आप की करांगे जदों भी इस तरह का क्वेश्चन आए जो आपको टोटल जी लेंथ दी होंगी उस जिन्ना यह एक बारी चढ़ सकता है उन्ना घटा दो, कितना आ जाऊगा इतने 8 मीटर आ जाऊगा। तो आप की करांगे सब तो पहले 8 मीटर चढ़ा देंगे इनू, 8 मीटर चढ़ाने इनू आप की करांगे, ठीक है। 8 मीटर चढ़ाना है तो इनू 8 मीटर बनाने लिए कितना मल्टीप्लाई करना पऊगा 4 दे नाल, अगर इधर 4 नाल मल्टीप्लाई किया तो इधर भी कर दो, तो आपको पता लग गया 4th अटैम्प्ट दे विच किन्ने मीटर चढ़ जाऊगा 8 मीटर चढ़ जाऊगा, तो 5th अटैम्प्ट दे विच यह 3 मीटर होर चढ़ जाऊगा, तो यह 11 मीटर की जी लेंथ है वो कवर कर दूगा 5th अटैम्प्ट के विच, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा 5th अटैम्प्ट, यानी 5वें अटैम्प्ट के विच यह इस पोल नूं क्लाइंब कर दूगा, यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 5th अटैम्प्ट। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, इस दे विच आपां नूं 3 स्टेटमेंट्स दित्तियां गईयां ने ते 3 ही कनक्लूजन दिते गए हैं। आपां नूं पूछा गया है किहड़ी स्टेटमेंट दे इन्हां दे विच स्टेटमेंटां दे विच नाल किहड़े कनक्लूजन ने जिहड़े फॉलो करदे ने आपां ने इस क्वेश्चन दे विच पता करने ने। सब तो पहला ऑल टेबल्स आर पेंसिल्स, ऑल टेबल्स आर पेंसिल्स ये लिख लिया आपां ने। नो पेंसिल इज बॉक्स,
नो पेंसिल इज बॉक्स, ठीक है, नो पेंसिल इज बॉक्स। सम बॉक्सेस आर मैट्स, सम बॉक्सेस आर मैट्स। पहला कंक्लूजन देखो, सम मैट्स आर पेंसिल्स, सम मैट्स आर पेंसिल्स। मैट्स इत्थे ने ते पेंसिल इत्थे, इन्हां दे विच आपस विच कोई रिलेशन नहीं है, तो यह कंक्लूजन फॉलो नहीं हो सकता। सम बॉक्सेस आर टेबल्स, सम बॉक्सेस आर टेबल्स। अगर इन्हां दे विच रिलेशन एस्टैबलिश करने की कोशिश करिए आपां तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो बॉक्स है इसका कोई भी रिलेशन नहीं है इस पेंसिल के नाल। तो टेबल के नाल किवें हो जाऊगा, क्योंकि टेबल तो उहदे विच है कि इस दे विच पेंसिल दे विच, इस करके इहदे नाल भी रिलेशन नहीं हो सकता। सम मैट्स आर टेबल्स, जो मैट है वो इत्थे है तो टेबल इत्थे है, तो इन्हां दे विच भी कोई रिलेशन एस्टैबलिश नहीं हो सकता। तो आंसर की बन जाऊगा नन फॉलोस, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। आंसर बन जाऊगा ए ऑप्शन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 3:2, यानी बॉयज़ ते गर्ल्स का जिहड़ा रेशो है, यानी लड़के ते लड़कियां का जिहड़ा रेशो है एक स्कूल दे विच, वो कितना है 3:2, ठीक है। टोटल किन्ने ने 5 ने इस रेशो के अकॉर्डिंग, ठीक है। 20% बॉयज़ यानी 20% लड़के तो 25% लड़कियां जिहड़ियां ने वो स्कॉलरशिप होल्डर ने, यानी स्कॉलरशिप किन्ने नूं मिलती है, स्कॉलरशिप होल्डर किन्नियां ने 20%, इसका 20% कितना आ जाऊगा 0.6, इसका 10% 0.3 आ जाऊगा, तो 20% 0.6 आ जाऊगा, तो इत्थे कितना आ जाऊगा 0.6, तो यदा कितना है 25%, यदा कितना आ जाऊगा 25 दूना 50 यानी 0.5, ठीक है 0.5। इस दे विच आपां नूं की पूछा गया है इस क्वेश्चन दे विच, इस दे विच आपां नूं पूछा गया है वो परसेंटेज जिन्हां नूं स्कॉलरशिप नहीं मिलती। यही कि ने स्कॉलरशिप होल्डर ने, नॉट स्कॉलरशिप होल्डर किहड़े आ जाणगे, इहदे विचों माइनस कर देंगे, 3 दे विचों 0.6 माइनस किया 2.4 आ गया, तो इहदे विचों माइनस किया तो कितना आ गया 1.5 आ गया। तो टोटल ये किन्ने हो गए, ये टोटल 1.1 हो गए, तो ये किन्ने हो गए 2.4 तो 1.5 कितना हो गया 3.9। तो यही पूछा गया अपन किन्ने परसेंट हो जाऊगा इस टोटल का, तो आप पता कर लेंगे 3.9 बटे कितना कर देंगे 5 गुना कर देंगे 100 के नाल 100 के नाल, 5 एकम 5 20 5 100, 3.9 नूं 20 नाल मल्टीप्लाई करांगे 78% आ जाऊगा, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा 78%। इस क्वेश्चन आंसर है जो अपना डी ऑप्शन। 78% जिहड़े स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है कैंडीडेट, चाहे इस दे विच आपां बॉयज़ ने चाहे गर्ल्स ने, उन्होंने दोनों को अपने ऐड करके देख लिया, ये स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है 78%। यही पूछा गया सी आपां नूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन 78%। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कहते 11 है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू 51 है। आपां नूं पूछा गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दसो कितनी होगी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जी वैल्यू है वो आपां नूं इस क्वेश्चन के जो पूछा गया है। तो इस दे विच की कर सकते हैं आपां, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू अपन दी गई है, तो यदि होल स्केयर कर देने आप दोनों साइड्स, ठीक है। यदा होल स्केयर करांगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 है, तो यदा होल स्केयर कर देंगे दोनों साइड्स। तो किमें इसनूं आपां किमें ओपन कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला की हुंदा है, इसका फॉर्मूला हुंदा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इधर कितना आ जाऊगा 11 का स्केयर 121, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू कितनी है 51 है, तो 51 लिख देंगे इत्थे, ठीक है। इत्थे कितना आ जाऊगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 121, तो इधर कितना आ जाऊगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, 121 के विचों 51 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू चाहिए आपां नूं, तो वो कितनी आ जाएगी 70 बटे कर देंगे 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 35। यही आपां नूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा 35, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पूछा गया सी, वो आपां ने फाइंड कर ली, कितनी आ गई अपनी 35। इसका आंसर बन जाऊगा डी ऑप्शन 35। A sum of rupees 427 is divided is to be divided among A, B, C in such a way that, यानी एक सम है 427 रुपये जो कि ए बी तो सी दे विच है जिहड़ा वो डिवाइड किया जाता है। इन्हां दा आपां नूं शेयर दिता गया है 3 टाइम्स ऑफ ए इज शेयर, 4 टाइम्स ऑफ बी इज शेयर एंड 7 टाइम्स ऑफ सी इज शेयर आर इक्वल, यानी 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 7C। ये तीनों की ने बराबर ने,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 427 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 4 7 28 28 30 84, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 84 84। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 28, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 84 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 28। ਤਾਂ ਇਹਦੀ A ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 28 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। B ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 21 ਜੋ ਕਿ 84, ਤਾਂ 21 ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ C ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 12 7 84, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 12। ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ 28 ਤੇ 12 40 ਤੇ 21 61, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 61, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 61। ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 427 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 427 ਰੁਪਏ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ 427 ਬਣ ਜਾਣੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 7 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 28 ਗੁਣਾ 7 ਕਰ ਦਾਂਗੇ 8 7 56, 6 5 ਰਿਮਾਈਂਡਰ, 7 ਗੁਣਾ 14 ਦੇ 5 19 196, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਗੁਣਾ 7 7 ਕਮ 7 7 ਗੁਣਾ 14 147। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਗੁਣਾ 7 ਕੀਤਾ 84, 196 147 84। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ A ਆਪਸ਼ਨ 196 147 ਤੇ 84। ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ A ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 15 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੇਪਸ ਕੰਟੇਨ 80% ਵਾਟਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੇਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 80% ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਸੁੱਕਾ ਗ੍ਰੇਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 10% ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੇਪ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਇੱਕ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੇਪ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਡਰਾਈ ਗ੍ਰੇਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਪਾਣੀ ਹੈ, 80% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 80% ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20% ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ weight ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 100% ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈ ਗ੍ਰੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ weight ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰਾਈ ਗ੍ਰੇਪ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10% ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 10%, ਤੇ ਪਲਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 90% ਹੈ, 90%। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਇਸ ਡਰਾਈ ਗ੍ਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੇਪ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ weight ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਟੋਟਲ ਡਰਾਈ ਗ੍ਰੇਪ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 90% ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 90% ਪਲਪ ਹੈ ਉਹ 20% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਕੀ ਹੈ ਪਲਪ ਹੈ, ਤਾਂ 90% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 250 ਦਾ 90% ਕੱਢੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 90% ਆਫ 250, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 225 ਆ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 225 ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪਲਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 225 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 225 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 225 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ weight ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਲਪ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਲਪ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਲਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 20% ਦਾ weight ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 225 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 225 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੇਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਟੋਟਲ 100% ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ 20% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 225 ਹੈ, ਤਾਂ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 225 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 5 ਦੇ ਨਾਲ, 5 5 25, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਰਿਮਾਈਂਡਰ 5 ਦੂਣਾ 10 ਤੇ 2 12, 2 ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 5 ਦੂਣਾ 10 ਤੇ 1 11, ਯਾਨੀ 1125 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ weight ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੇਪ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 1125 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਂਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਡੈਸ਼ ਲੋਸਟ देयर ਬੁੱਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੀ ਗਰਲਸ, ਮੈਨੀ ਗਰਲਸ ਯਾਨੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ, ਮੈਨੀ ਗਰਲਸ ਲੋਸਟ देयर ਬੁੱਕਸ। ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਨੀ ਗਰਲਸ। ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਨ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦ ਟਾਈਗਰ ਵਾਜ਼ ਟ੍ਰੈਪਡ ਬਾਈ ਦ ਹੰਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਟਾਈਗਰ ਵਾਜ਼ ਟ੍ਰੈਪਡ ਬਾਈ ਦ ਹੰਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ।
इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाऊगा वो की बन जाऊगा द हंटर तो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। द हंटर ट्रैप्ड द टाइगर, यानी आंसर बन जाऊगा इस क्वेश्चन अपना फोर्थ ऑप्शन द हंटर ट्रैप्ड द टाइगर। इतने बींग है, बींग वाला नहीं आ सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर बन जाऊगा फोर्थ ऑप्शन द हंटर ट्रैप्ड द टाइगर। उस तो बाद एक वर्ड दिता गया आपां, इसका सिनोनियम पूछा गया आपां फैलेसी। फैलेसी जो वर्ड है इसका मतलब की होंदा है, इसका मतलब होंदा है भुलेखा। भुलेखा इस वर्ड का मतलब की होंदा है भुलेखा। यह जो वर्ड है इसका सिनोनियम पूछा गया आपां, ठीक है। ऑप्शन तो तुसीं इत्थे देख सकते हो, सारे इत्थे ऑप्शन दिते गए हैं 4, फस्ट सैकेंड थर्ड एंड फोर्थ। इसका जो सिनोनियम है वह किहड़ा है, इसका सिनोनियम है डिल्यूजन। इसका आंसर बन जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब की होंदा है भुलेखा, यानी फैलेसी ते डेल्यूजन का जो मतलब होंदा है वो की होंदा है भुलेखा। आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन डिल्यूजन। स्पैशल इफैक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज। स्पैशल इफैक्ट्स ने जिहड़े जदों यूज़ करते हैं आपां, ठीक है, स्लाइड्स नूं इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेजेंटेशन दे विच, तां उन्हां नूं की बोलते हैं आपां, ठीक है। स्पैशल इफैक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज, उन्होंने की बोलते हैं ट्रांजिशंस, इफैक्ट्स, कस्टम एनीमेशंस या फिर एनोटेशंस, इन्हों बोलते हैं आप ट्रांजिशंस। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ट्रांजिशंस। वर्म इज़ अ प्रोग्राम दैट इनफेक्ट्स कंप्यूटर एंड स्प्रेड्स बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स। यानी वर्म एक प्रोग्राम है कहते जिहड़ा इफेक्ट करता है कंप्यूटर नूं ते स्प्रैड करता है बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसनूं की बोलते हैं आप, सैल्फ अटैच, सैल्फ रेप्लीकेटिंग, नॉन सैल्फ रेप्लीकेटिंग या फिर हैकिंग। इसनूं बोलते हैं आप सैल्फ रेप्लीकेटिंग। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सैल्फ रेप्लीकेटिंग, बी ऑप्शन। किहड़ी उपभाषा पाकिस्तान पंजाब के रावलपिंडी के पहाड़ी इलाके में बोली जाती है, ठीक है। पंजाबी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इत्थों, ठीक है। किहड़ी उपभाषा पाकिस्तान पंजाब के रावलपिंडी के पहाड़ी इलाके के बोली जाती है, माझी, डोगरी, पोठोहारी या फिर पुआधी। यह है पोठोहारी। इसका आंसर बनेगा पोठोहारी, सी ऑप्शन। पंजाबी विच संख्यक विशेषण किन्ने रूप के मन्ने गए हैं। पंजाबी दे विच जो संख्यक विशेषण ने किन्ने रूप के मन्ने गए हैं, 2, 3, 4, 6। यह मन्ने गए हैं 6 रूप मन्ने गए हैं, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा 6। किहड़े किहड़े? सधारण, कर्मवाची, कर्मवाची, समुच्चता बोधक, समुच्चता बोधक, कसरी, निखेड़वाची, निखेड़वाची, अनिश्चित, अनिश्चित। यह 6 प्रकार के मन्ने गए हैं संख्यक विशेषण के रूप। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 6 प्रकार के। परिमाणवाचक विशेषण कितनी किस्म के होंगे हैं? परिमाणवाचक विशेषण जिहड़े कितनी किस्म के होंगे हैं? 2, 3, 4, 5। ये होंगे ने 2 प्रकार के, 2 किस्म के। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन 2 किस्म के। किहड़े किहड़े? निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित, निश्चित ते अनिश्चित, ठीक है। निश्चित दे विच जिवें फॉर एग्जाम्पल 2 किलो, आपां नूं एग्जैक्ट पता लग रहा है कि 2 किलो की गल की गई है, ठीक है। इस तरह 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है। अनिश्चित दे विच जिवें थोड़ा जिहा, यह अनिश्चित की उदाहरण है। आपां नूं नहीं पता किन्ना क मंगिया है, थोड़ा जिहा यह एक अनिश्चित की उदाहरण होगी। निश्चित 2 किलो तो 5 मीटर उदाहरण हो गई। इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन 2। इन पंजाबी कल्चर वट इज सरपेश। पंजाबी कल्चर के कहते सरपेश की है, ठीक है, पंजाबी सभ्याचार के। एन ऑर्नामेंट वॉर्न इन फ्रंट ऑफ टर्बन, यानी पगड़ी के अगे पहनने वाला जो ऑर्नामेंट है, गहना है, वह है, ठीक है। उस तो बाद एंकल से पहनने वाला गहना है, या फिर नैक से या फिर आर्म्स से। यह जो गहना है सरपेश, यह पहनया जाता है टर्बन यानी पगड़ी के अगे, यानी इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना ये ऑप्शन एन ऑर्नामेंट वॉर्न इन फ्रंट ऑफ अ टर्बन। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है ए ऑप्शन एन ऑर्नामेंट वॉर्न इन फ्रंट ऑफ अ टर्बन।
ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਬਾय द नेम ऑफ वितास्ता इन संस्कृत। संस्कृत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਵਿਤਾਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਤਾਸਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ? ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਸ। ਇਹ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਦੀ ਹੈ ਜੇਹਲਮ। ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਰਿਵਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤਾਸਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੇਹਲਮ ਰਿਵਰ। जो जेलम रिवर है इसनूं वितासता कहा जाता सी, ठीक है, संस्कृत दे विच। इस तरह चनाब नूं की कहा जाता सी? अस्किनी, ठीक है। रावी नूं परुशनी कहा जाता सीगा। ब्यास नूं विपाश कहा जाता सीगा, ठीक है। एक रिवर सी इंडस रिवर, इसनूं सिंधु कहा जाता सीगा, ठीक है, सिंधु रिवर। यह सारियां जिहड़ियां रिवर दे नेम ने ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇਹਲਮ ਰਿਵਰ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ PSSB ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 5 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ 500 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਮੌਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ 700 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਚਾਰजेस ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਮੌਕ ਟੈਸਟਸ ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ 500 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 300 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ 300 ਰੁਪਏ ਚਾਰजेस ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 250 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ 250 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ 700 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ 5 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਮੌਕ ਟੈਸਟਸ, ठीक है, प्लस 500 MCQs कादे पंजाबी क्वालीफाइंग दे। पंजाबी क्वालीफाइंग जिहड़ा पेपर हुंदा है उसदे 500 प्रश्न तुहानूं दित्ते जाणगे इस मॉक टेस्ट सीरीज़ दे नाल ही, ठीक है। इन्हां दी जिहड़ी कुल कीमत है वो 700 रुपये है, बट 700 रुपये पे नहीं करने, तुहानूं 400 रुपये का डिस्काउंट तुहानूं दित्ता जाऊगा। सिर्फ और सिर्फ तुहानूं 300 रुपये पे करने ने। यह सिर्फ और सिर्फ पहले 250 स्टूडेंट्स 250 स्टूडेंट्स के लिए ही डिस्काउंट होगा, ठीक है। पेपर बहुत नज़दीक है, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਮੌਕ ਟੈਸਟਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ठीक है, 7009868826 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੂਗਲ पे, फोनपे, पेटीएम ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ पे ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, फोनपे ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, पेटीएम ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 300 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਨੰਬਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ठीक है। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ PSSB फायरमैन, PSSB फायरमैन, सेम नंबर WhatsApp के ऊपर, ठीक है। PSSB फायरमैन लिख देना है, नाल स्क्रीनशॉट अटैच कर देना, नाल लिख देना है PSSB फायरमैन। साडी तरफ तो तुहानूं जिहड़े मॉक टेस्ट ने तुहाडे सेम नंबर WhatsApp के ऊपर शेयर कर दिते जाणगे 1 घंटे के विच, ठीक है। 1 घंटे के विच तुहानूं जिहड़े मॉक टेस्ट्स ने वो शेयर कर दिते जाणगे तुहाडे सेम नंबर WhatsApp के ऊपर, ठीक है। इस दे विच 5 मॉक टेस्ट होणगे ते 500 प्रश्न जिहड़े वो पंजाबी क्वालीफाइंग दे होणगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ये जिहड़े क्वेश्चनस ने बिल्कुल एग्जाम ओरीएंटड जिन्ने भी प्रीवियस पेपर होए ने उन्हां नूं दिमाग दे विच रख के जिहड़े ने वो प्रिपेयर किए गए ने। जिहड़े बच्चे सीरीयस ने इस पेपर नूं क्लीयर करना चाहते हैं तो फायरमैन की जिहड़ी पोस्ट है उस ते लगना चाहते हैं, वो इन्हां मॉक टेस्ट्स नूं अटैम्प्ट करके जरूर जाण, ठीक है। ये जो मॉक टेस्ट ने ये भी याद रखना है, ये इंग्लिश प्लस पंजाबी दे विच होणगे, यानी ये बाईलिंगुअल होणगे, दोनों लैंगुएज दे विच जिहड़े ने अवेलेबल करवाए गए ने। ये
5 ਦੇ 5 ਮੌਕ ਟੈਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ MCQs ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੇ 5 ਤੇ 500 ਪਲੱਸ MCQs ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। अगर कोई बच्चा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो वह बच्चा इस बैंक के विच भी जी अपनी ट्रांजैक्शन कर सकता है। सेम नंबर WhatsApp के उपर अपनी रिसिप्ट सेंड कर देनी है, उस दे विच भी तुहानूं लिख देना है WhatsApp के उपर PWP फायरमैन। साडी तरफ तो 1 घंटे के विच तुहानूं जिहड़े MCQs ने वो सेंड कर दिते जाणगे। ये जो क्वेश्चनस ने ते 5 मॉक टैसट ने तुहानूं तुहाडे सेम नंबर WhatsApp के उपर साडे द्वारा सेंड कर दिते जाणगे। यही गल याद रखनी है, 300 रुपये चार्जिस सिर्फ और सिर्फ पहले 250 स्टूडेंट्स के लिए ही होंगे। जदों ये स्टूडेंट्स पूरे हो जाते हैं उस तो बाद इसके चार्जिस कितने हो जाएंगे, 700 रुपये। ये गल याद रखनी है, जिहड़े बच्चे चंगी तरह तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो इन्हां मॉक टैसट नूं अटैम्प्ट करके जरूर जाण। यह कंप्लीट डिटेल है अपनी इन्हां मॉक टैसटां दे बारे। अगर कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो इस नंबर पर तुसीं WhatsApp के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो। साडी तरफ तो तुहानूं जिहड़ा है 1 घंटे के विच रिस्पॉन्स मिल जूगा, कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। सो ये सी अपना फ्री मॉक टैसट नंबर 1, जिस दे विच आपां ने 25 क्वेश्चनस कवर किए हैं, काफ़ी डिटेल दे विच कवर किए हैं सारे दे सारे क्वेश्चनस, ठीक है। इस दे विच आपां ने गल की है मॉक टैस्टस की, 5 मॉक टैस्टां की गल की है, ठीक है। कंप्लीट मॉक टैसट होंगे ये 5 दे 5 मॉक टैसट ते नाल 500 क्वेश्चनस होंगे पंजाबी कुआलीफाइंग दे। इन्हां दी कीमत सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये। पहले 250 स्टूडेंट्स के लिए, जिहड़े बच्चे सीरीयस ने इस पेपर नूं क्लीयर करना चाहते हैं वो इन्हां 5 मॉक टैस्ट्स नूं अटैम्प्ट करके जरूर जाण। ते इस दे विच ये भी गल याद रखनी है, इस दे विच जिहड़ा टाइम है वो लगा के तुहानूं जिहड़े MCQs ने अटैम्प्ट करने ने 5 दे 5 जिहड़े मॉक टैस्ट ने, ठीक है। जदों आपां टाइम लगा के अटैम्प्ट करते हैं तां ही आपां नूं जिहड़ी एग्जैक्ट पोजीशन है अपनी वो पता चलती है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ने जिहड़े आपां नूं पता चलते हैं जो आप टाइमिंग लगा के पेपर नूं अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। यह कंप्लीट डिटेल है। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो इस नंबर पर तुसीं मैसेज करके पूछ सकते हो, 7098 68826। ये है साडा WhatsApp नंबर, इसके उपर मैसेज करके तुसीं कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो ये सी मॉक टैस्ट नंबर 1। इस तो बाद मिलते हैं आपां फ्री मॉक टैस्ट सीरीज़ के सैट नंबर 2 दे विच। सो थैंक यू सो मच।